Welcome to the second lesson of your SP Sources of Corporate Finance. Now, today we'll discuss about preference share holders. Now, today we'll discuss about preference share holders. As the name indicates, these shares have certain preferential rights. These shareholders are enjoying certain preferential rights, such as we can say right of dividend, such as right of dividend. The first and prime right, we can say, the first and prime right which a preference shareholder enjoys is, we can say, they are enjoying a preferential right of, we can say, payment of dividend. Preferential right of payment of dividend. Dividend जो भी हमारा पे होने वाला है, as I told you, कि whatever money is been collected from the general public, it's been divided into two parts. First one is equity shareholder, and another one is preference shareholder. So only preference shareholders are enjoying a right, only they are enjoying the preferential right of payment of dividend. First, preference shareholders will get the payment of dividend, and afterwards, equity shareholders. The next one is they are also having, we can say, right to the return of capital. Right to return of capital. Now, at the time of winding up, or we can say shutdown of company, the liquidation of company, only they are having a prime right, a preferential right to take their capital in return, to take out the capital in return. हमारे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं बच्चों, इनके नाम ही से हम इनका मतलब समझ सकते हैं कि इनको कुछ चीजों में प्रेफरेंसेस मिलते हैं, तो कुछ चीजों में इनको प्रेफरेंसेस हासिल है। जैसे कि मैंने बताया था, शेयर हम लोग दो टाइप के लोगों को इशू करते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। जैसे कि इनके नाम ही से हम इनका मीनिंग पता कर सकते हैं बच्चों कि इनको कुछ चीजों को कैसे प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं या दिए जाते हैं। जैसे कि पहला वाला पॉइंट है मेरा कि इन लोगों को जो डिविडेंड होते हैं या जो रिटर्न होते हैं वो इनको सबसे पहले पे किए जाएंगे, क्योंकि ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दे विल नॉट वेट फॉर द डिविडेंड या फॉर द रिटर्न, उनको सबसे पहले डिविडेंड दे देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही है या शटडाउन हो रही है या हमेशा के लिए हम उसको ताले लगा रहे हैं, तभी भी सबसे पहले कैपिटल हमें इन्हीं बंदों को रिटर्न देना होगा। नाउ वी कैन से लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वन बाय वन। आइए देखते हैं इसी के फीचर्स क्या होने चाहिए थे। नाउ फीचर्स ऑफ preference share. The first one is preference to dividend. Now the first one is, we can say, preference to dividend. The prime, we can say, the prime right and the prime authority is been provided or given to the preference shareholders are, they are enjoying a preferential right to get the return in terms of dividend. हमारे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चों, इनको सबसे जो पहला वी कैन से फीचर अलॉट किया जाता है या दिया जाता है वो है कि ये लोगों को प्रेफरेंस होता है या सबसे पहले डिविडेंड इन्हीं लोगों को डिवाइड किया जाएगा, या जो भी रिटर्न होते हैं शेयर के ऊपर के, वो सबसे पहले रिटर्न इन्हीं लोगों को दिए जाएंगे। एज preference shareholders have the first charge on distribution amount of annual net profit. They are in the first list. And at the time of distribution of profit. Whenever a company wants to distribute profit between the shareholders, so only preference shareholders are having a prime right to get the, we can say, profit, we can say to get the dividend in return। first सबसे पहले रिटर्न या डिविडेंड या प्रॉफिट
हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑफ वी कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल प्रॉफिट। इसे ही हम लोग बोल देते हैं कि बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिफोर वी कैन से इक्विटी शेयर होल्डर्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे पे किए जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला वाला पॉइंट, प्रेफरेंसेस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंसेस ऑफ वी कैन से रीपेमेंट of capital. The another point is, the another feature of preference share capital is, guys, we can say in respect of return of capital when a company is liquidated. Whenever a company is liquidated, whenever a company is liquidated, it saves preference shareholders from capital losses. Whenever company is liquidated, only we can say preference shareholders got repayment of capital at first. सबसे पहले जो we can say अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, शट डाउन भी हो जाती है, तभी भी सबसे पहले जो कैपिटल की अमाउंट है, वॉट एवर अमाउंट इज बिन इन्वेस्टेड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबसे पहले वो रीपेमेंट कैपिटल का किसको मिलता है, वो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। So this is another feature of your preference shareholders. That first one is we can say returns उन्हें सबसे पहले मिलते हैं, फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल उनको सबसे पहले मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड रिटर्न। Fixed return. Now, if we take the example of equity shareholders, so equity shareholders, they are owners of the company and the rate of return is not fixed for equity shareholders and it's changed or it's fluctuated. If company is earning profit, then we can say they'll also enjoy profit with the company, and if the company is suffering from losses, so they also have to, we can say, bear risk or bear losses. But on the other hand side, now we are talking about preference shareholders and the rate of return, yeah, we can say rate of dividend is fixed for preference shareholders as they are not involved in any profit, or we can say not involved in any kind of losses of the company. Now let's have a look towards, we can say, the preference shareholders, we can say the third point of it, fixed return. These shares carry dividend at fixed rate. These shares, means preference shares, they are they are carrying a rate of return at, we can say, fixed rate. The rate of dividend is predetermined at the time of issue. It may be in the form of fixed sum or may be calculated at fixed rate. जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे बच्चों, ये लोग प्रॉफिट बढ़ रहा है अगर तो इनको ज्यादा मिलेगा, या लॉस हो रहे हैं तो कम पैसा मिलेगा, नॉट लाइक दैट। इनका जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो फिक्स रहेगा। कंपनी को प्रॉफिट हो तो भी इनका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स रहेगा, कंपनी को अगर लॉस हुआ तभी भी इनको उतने ही पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गेटिंग इन रिटर्न 1000 रुपीज। अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तभी भी इनको 1000 मिलेंगे। इफ कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस तभी भी इनको 1000 ही मिलेंगी। मीन्स देयर इज नो चेंज इन, वी कैन से, रिटर्न फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनके रिटर्न में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा, इनको रिटर्न जो है वो एज इट इज मिलते रहेंगे बच्चों। आइए देखते हैं हमारा अगला फीचर जो कि है मेरा, वी कैन से, नेचर ऑफ कैपिटल। द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस नेचर ऑफ कैपिटल। अब ये लोग कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या कैसे कैपिटल देते हैं। नाउ preference shares do not provide permanent share capital, they are redeemed after a period of time। चलिए अब हमारे ये जो वी कैन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, द फर्स्ट वन इज दे आर नॉट owner of the company, they are not owner of the company, and as they are not owners of the company, so their amount of capital, we can say that amount of capital is not for permanent basis, not for permanent basis। क्योंकि हमारे ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है बच्चों, ये कंपनी के ओनर तो नहीं है, ठीक है, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं।
इसीलिए इनका ये जो कैपिटल होता है ये भी परमानेंट बेसिस के लिए हमारी वी कैन से कंपनी में या फर्म में परमानेंट बेसिस के लिए नहीं होता है. Whenever they want to redeem their shares after a particular time span, if they want to redeem करना मतलब कि क्या, अपने शेयर्स को अगर ये रिडीम करना चाहे, स्प्लिट करना चाहे, कन्वर्ट करना चाहे या निकालना चाहे तो ये लोग इजीली उन चीजों को रिडीम कर सकते हैं. तो अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ये लोग वी कैन से इनके जो शेयर है ये इजीली रिडीम कर सकते हैं. और प्रेफरेंस शेयर एक और चीज है बच्चों कि प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल कभी नहीं होते, वो हमेशा रिडीमेबल हो सकते हैं जो इजीली चेंज हो जाएंगे या इजीली वो लोग अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. Whenever they want, they can easily quit their money from the business. So this is all about the capital. The next point is market value. The next point is, guys, market value. Now let's have a look towards the, we can say, market value of it. The market value of preference share does not change. The market value, we can say, does not change. As I told you that preference shareholders, they are creditors of the company. Just due to these reasons, the market value of preference shares does not change. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं बच्चों, लाइबिलिटी होती है या जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनके जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो कभी भी नहीं बदलेगी. ओके, द नेक्स्ट वन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज as the rate of dividend payable to them is fixed. As the rate of dividend, है ना, dividend जो है, the rate of dividend is fixed for them, है ना. rate of dividend क्योंकि fixed होता है इसलिए उनकी शेयर की या कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ देयर शेयर वो भी फिक्स रहेगी. क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स है तो उनके शेयर की प्राइसेस भी फिक्स रहेगी. ये था हमारा अगला फीचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में. आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि we can say voting rights. 6th वाला पॉइंट है मेरा बच्चों, वोटिंग राइट. अब आइए देखते हैं हम लोग कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वी कैन से किस टाइप के वोटिंग राइट्स वी कैन से अलॉट होते हैं या वो दे सकते हैं. नाउ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स. दे डू नॉट हैव वी कैन से वोटिंग राइट. ये लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं एज दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड नो क्रेडिटर्स विल एंटरटेन इन वी कैन से पर्सनल और वी कैन से हमारे वोटिंग के जो राइट्स रहेंगे क्योंकि ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स है तो इन लोगों को वोटिंग के राइट्स नहीं दिए जाते हैं. आइए देखते हैं अगला वाला पॉइंट मेरा जो कि है रिस्क, जो कि है बच्चों मेरा रिस्क. अगला पॉइंट बन जाता है मेरे लिए रिस्क वाला. आइए देखते हैं रिस्क में क्या है. द इन्वेस्टर्स who are cautious generally purchase preference shares. Okay, risk. आइए देखते हैं. The persons who are thinking that he should we invest the firm in ABC company or not? Maybe it is investors are little bit cautious about their funds. Investors जो है वो अपने पैसों को लेके थोड़े से वीकेंड से पॉजिटिव होते हैं कि कॉशियस होते हैं कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया रिटर्न अच्छे से नहीं मिले और तो दैट्स व्हाई they are investing their money in preference shareholders. इसलिए वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं बच्चों इंस्टीड ऑफ इक्विटी. वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको वी कैन से डिविडेंड सबसे पहले मिल जाता है, वी कैन से फिक्स रेट होता है और वो लोगों को कोई लॉसेस भी बेयर करने नहीं पड़ते हैं. इसलिए ये लोग रिस्क बेसिस को हटाने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं कि डिविडेंड भी सबसे पहले मिल जाएगा और एक चीज मैं भूल गई हूँ, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे पहले हो जाएगा. मीन्स दे आर एंजॉइंग एज दे आर थर्ड पार्टी ऑफ द कंपनी तो उनको डिविडेंड भी वी कैन सी सबसे पहले मिल जाएगा, फिक्स्ड रेट पे मिल जाएगा. दे डू नॉट हैव टू बेयर लॉसेस ऑफ द कंपनी एंड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल तभी भी उनको प्रेफरेंशियल राइट मिल जाएगा. आइए देखते हैं हमारा अगला फीचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का विच इज योर 8th वन, फेस वैल्यू. Now, the eighth feature of your preference share is we can say face value. Face value of we can say preference share is relatively higher than equity share. हमारा ये जो preference shares होते हैं इनकी जो प्राइसेस होती है इट्स लिटिल बिट हायर
as compared to equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर के कंपेयर में हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वी कैन से प्राइजेस फेस वैल्यू मतलब वी कैन से प्राइस ऑफ शेयर या रेट ऑफ शेयर। प्रेफरेंस शेयर की प्राइजेस थोड़ी सी हाइयर होती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये देखते हैं वो कितनी एक्स्ट्रा होती है। दे आर नॉर्मली इश्यूड एट नाउ द शेयर्स आर नॉर्मली इश्यूड एट ₹100 ईच शेयर। मैक्सिमम या वी कैन से ज्यादा करके ये 100 रुपए का एक शेयर मार्केट में इशू किया जाता है, जो कि इक्विटी शेयर के कंपेयर में इसकी प्राइसेस थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी से थोड़ी सी ज्यादा होती है फेस वैल्यू हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, और यूजुअली वो होती है 100 तक के। आइए 9th वाला पॉइंट देखते हैं इसका, राइट्स और बोनस इश्यू। राइट्स और bonus issue. Now the 9th point of it is rights or bonus issue. Now, as I told you that preference shareholders, they are third party, yeah, they are creditors of the company. So preference shareholders are not entitled for we can say bonus or rights of issuing shares, क्योंकि ये हमारे लिए we can say थर्ड पार्टी हो जाते हैं और थर्ड पार्टी को बोनस देने की कोई जरूरत नहीं है। And as they are third party, yeah, they are creditors of the company, so they are not entitled for rights or bonus issues. तो ये लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि वो लोग बोनस में शेयर ले या राइट्स के अंदर भी शेयर ले। आइए लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, हमारा नेचर ऑफ इन्वेस्टर। द नेक्स्ट वन इज गाइस नेचर ऑफ इन्वेस्टर। आइए देखते हैं कि इन्वेस्टर का नेचर क्या हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी वी कैन से लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा पॉजिटिव होते हैं या कॉशियस होते हैं अपने पैसों से रिलेटेड, या लिटिल बिट दे वांट देयर अमाउंट टू बी सेफर इन वी कैन से अ पर्टिकुलर या रिस्पेक्टेड कंपनी। वो लोग अपना जो भी कैपिटल का पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर तरीके में सेफ हो या फिक्स्ड हो, इसीलिए वो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर में इन्वेस्ट करते हैं कि उनको वी कैन से शेयर कैपिटल के पैसे भी इजीली रिटर्न हो जाए, डिविडेंड भी उनको फिक्स हो और उनको कोई ज्यादा लॉसेस बियर करने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये सबसे हमारे फीचर्स।